of Jesus, let the Lord God open your eyes to see him as he is. And I'm telling you, I have never found anybody who can love me just like Jesus. I'm telling you what God is impressed with. God is impressed with the worshippers who will worship the Lord with all their heart. You have to eat the meat. Listen very carefully. This is all I'm supposed to be speaking today. I don't want to speak more than what God is showing me. God told them to eat the meat with unleavened bread and with bitter herbs. Everybody say bitter herbs. Okay. I told you it's going to be deep, but it's going to be worth it. Okay, hold on. Hang on there. Hold on there. Put on your seat belts. We're going there. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Okay. So now Jesus said, unless you eat my flesh and drink my blood, you have no life in you. Jesus म्हटला मुझे मांस खाल्याशिवाय मुझे रगत पिल्याशिवाय तुमचे भितर जीवित ना. Right? What did he mean by that? What do you mean, Lord, by eating the flesh and drinking the blood? So many people listen to the teaching of Jesus Christ and they left him. लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया. उस समय जो उनके साथ थे, उनके पीछे पीछे आ रहे थे, ये प्रभु का टीचिंग सुनकर वो लोग उसको छोड़ दिया. जब यीशु मसीह आया, उसने कहा मेरे मांस को तू खाओ, मेरे लहू को तू पियो. ये क्या बात करता है? तो लोगों ने उसको छोड़ दिया. लेकिन उस समय परमेश्वर ने ये कहा. John chapter 6 verse 63 says, it is the spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you, they are spirit and they are life. आत्मा ही जीवन देता है. हालेलुया. ये शारीरिक मन कुछ भी काम का नहीं है. आत्मा ही जीवन देता है. Only the spirit gives life, and the words that I speak to you, they are spirit and they are life. हालेलुया. इसका मतलब है कि आपका जीवन आत्मिक जीवन है. Your life is spiritual. You are understanding in the flesh, but I am trying to tell you something spiritual. हालेलुया. आपके शारीरिक मन में समझना चाहता है, समझ सकता है, लेकिन ये समझ नहीं पाएगा. You are not going to understand it unless you understand in the spirit. That is why Jesus said, they that has ears to hear, let him hear what the spirit is saying. Hallelujah. ज्यांका कान आसा ताणें आयकुचें. हालेलुया. आनी सगळ्याकूच कान ना. तुका Hallelujah. You have ears, no? Praise God. So you think it's this ears. That's what we hear with the flesh, and then we say, "Are sister कान ना म्हणटा." जेजू कित्याक म्हणले कान हात आनी आयकुचे? कितें म्हणटा जेजू तूं? म्हाका कान ना? आत्मिक कान, आत्मिक दोळे. हालेलुया. हालेलुया. आत्मा के कान के द्वारा हमको सुनना है. We have to listen to the ears of the spirit. Hallelujah. That's why Jesus said, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. That's why when we try to convince people to give up drinking, to give up smoking, to give up their sin, सोड रहे तो सोड रहे थे, सिगरेट सोड रहे थे, सगळे वाईट जीवन सोड रहे. सांगता तू कितले सांगता ते आयकना. कित्याक तू तुझी उतरां सांगता. जेन्ना तू देवाचे उतर घेवन यूज करतले न्हू, तेन्ना देवाचे उतर तांच्या जिवितांत काम करतले. कित्याक देवाचे उतर आत्मा आनी जिवीत जावन आसा. Hallelujah. Praise the Lord. So whatever God was trying to do in the Old Testament, he was trying to show them a physical symbol. Hallelujah. तांकां आत्मिक कानांनी तांच्या आयको घेवंक नासले. कित्याक तेन्ना पवित्र आत्मा मेळोंक नासलो सगळ्या जाणांक. तेका लागून देवान तांकां एक सिंबॉलिझम दाखयले की मेंढरो खोत नाशिल्लो, निष्कळंक मेंढरो, निर्दोष मेंढरो तुमी घेयात आनी ते मारात आनी ताचे रगत तुमी लायात. देव तांकां सांगोंक सोदतालो, आमचो सोडगीचो बाप तांकां सांगोंक सोदतालो की एक दीस अशें जातलें की जे
मरण पातका वरवी मनशा कुलाचेर आयले ते सगळे मरण पयस जातले म्हज्या पुताच्या रक्ता वरवी. Hallelujah. By the blood of my son, hallelujah, Yeshua, this sin, this death will go away. Hallelujah. Praise the Lord. And that's what happened that day. They put the blood tani rogat laile te apल्या गारा चिरानी भितर tani te मांस खाल्ले. Hallelujah. Yes, the angel of death passed by and he saw the blood on the doorpost and the dead did not enter their house. Right? Amen. Amen. Everybody likes it up till here. It's good. God protects us. Devanka rakta, Devanka samarta, Jesucha rakta, and everybody got a shortcut. There's something very beautiful. The Lord is going to speak to you now. So, we start with the flesh. Jesus says, unless you eat my flesh and drink my blood, you don't have eternal life in you. मोजे मांस खाल्ल्याशिवाय रगत पिल्याशिवाय तुझे भितर जीवित ना. So what do you mean? What do you mean? Anybody has ears in the spirit? You all have understood it? What God was trying to say? Hallelujah. At that time it was not understood. But now God has opened our spiritual ears and opened our spiritual eyes. Unless you believe, अगर तू विश्वास करता है कि मेरा ये शरीर तुम्हारे लिए बलिदान किया, तुम्हारे लिए ये मेरा लहू बहाया, अगर आप विश्वास करता है तो आपके अंदर अनंत जीवन आ जाएगा. और जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपना शरीर को बलिदान किया, लहू को बहाया, जब आप विश्वास करते हैं कि तेरे लिए बहाया, उस समय आप ये मांस को खाते हैं और इस लहू को पीते हैं आत्मा में. हालेलुया. You getting it? And that is how you get eternal life in you. ऐसे ही आपके अंदर अनंत काल का जीवन आ जाता है. हालेलुया. So when you get the life, when you eat the flesh, but see, what did God say to eat it with? Unleavened bread. उमेद नाशिल्लो उंडो. अनलेवन ब्रेड क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अखमीरी रोटी. हाँ, खमीर आते हैं ना रोटी में, उसके बगैर जो रोटी बनती है, उस रोटी में आपको ये मांस खाना है. किसके साथ? बिटर हर्ब्स. कड़वे सब्जी. बोलो कड़वे सब्जी. हाँ, बोलो कड़वे सब्जी. आज मैं आपको कड़वे सब्जी के बारे में बात करना चाहती हूँ. परमेश्वर ने ये वचन दिया आज, कड़वे सब्जी. तो अभी पिज्जा नहीं है. अगर परमेश्वर के लिए जिंदगी जीना है तो यीशु मसीह के संग कुछ आता है. Along with this guarantee of eternal life, ये अनंत काल का जीवन जो हमको गारंटी के साथ आता है, उसके साथ साथ को जुड़ा जाता है, और वो है कड़वी सब्जी. वो है आपकी लाइफ की परीक्षा. वो है आपके लाइफ का जो टेस्टिंग्स होता है. वो है जब परमेश्वर कुछ अलाउ करता है आपके जिंदगी में, जब लोग तुझे टुकराते हैं, लोग तुझे कुछ बात गलत करते हैं, लोग तुझे क्या क्या बोलते हैं. You know the sufferings of this present world. Jesus said in John chapter 16 verse 33, in this world you will have tribulation, in this world you will have troubles. Jesus म्हटला की तुझ्या जीवितात त्रास असतलेच, कोडूक भाजी खावची पडटली. आपको ये कड़वी सब्जी खाना ही है. It is important that you eat it. It's going to be part of your life. ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा. कभी ना कभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ तो अलाउ करेगा. अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि आप ही खुद ही
भी संभाल सकता है आपकी जिंदगी, लेकिन परमेश्वर हमारे जिंदगी में ये कड़वे सब्जी को अलाउ करता है ताकि हम उसके ऊपर निर्भर हो सके, that we can humble down and we can depend upon God, that we can depend upon the cross of Jesus Christ, not on your own works of righteousness which you have done, but according to His mercy He has saved you. Hallelujah. आपके धार्मिक अच्छे कामों के लिए नहीं, आपके भले कामों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसके अनुग्रह से, उसकी करुणा से आपको बचाया है। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा आपको मिला है ये सब। यीशु मसीह ने कहा ये जिंदगी में आपको ये ट्रबल्स आएंगे, आपको ये कष्ट आएंगे, आपको ये कड़वी बाजी को खाना पड़ेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको खुशी होना है। हालेलुया। You got to rejoice because I have overcome the world. मैंने इस दुनिया पर विजय पाया है। Come on, say hallelujah. 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 The Bible says the sufferings of this present times are nothing compared to the glory which shall be revealed in us. इस धरती पर जो कुछ हमारे जिंदगी में आएगा वो कुछ नहीं है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है वो कितना कुछ है। हालेलुया। So the Lord is preparing you right now with this word. If you are going to have Jesus Christ in your life, it's not going to be easy for you. It's not going to be all sweet, sweet. And sometimes you got to experience the bitterness of life in order to appreciate the sweetness of Christ. Let me say that again. Sometimes you got to experience the bitterness of life in order to experience the sweetness of Christ. कभी-कभी इस जिंदगी की कड़वाहट को आपको चखना है, क्योंकि अगर इस जिंदगी का कड़वाहट को आप चखते नहीं हैं तो परमेश्वर के प्यार को कैसे जानोगे? अगर ये दुनिया आपको प्यार दे सकता था तो परमेश्वर के प्यार के लिए आप क्यों तरसेंगे? लेकिन इस दुनिया में कुछ है ही नहीं जो आपको सेटिस्फाई कर सकता है। There is nothing in this world that is going to satisfy you. There is no one in this world that can love you just like Jesus. अगर आपकी जिंदगी बच जाएगी तो सिर्फ मेमने के लहू के द्वारा बच जाती है। हालेलुया। क्योंकि उसने सब कुछ लिया है आपके लिए। Hallelujah. He has taken it all on the cross because of you. And it is time for people to understand the value of the cross of Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर के क्रूस को वैल्यू करना है, उसके बलिदान को वैल्यू करना है। Hallelujah. That's the reason why God told them again and again every year that you are going to celebrate this. But we must not forget the bitter herbs. It seems like a small thing there. Because everybody talks about the flesh and blood, nobody talks about the bitter herbs. That's part of your life. And as I go on in life, I understand that. जिस मेरी जिंदगी चल रही है, पीछे से अभी तक मैं देखती हूँ लोगों की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कैसे परीक्षाएं आ गए, कैसे कष्ट आ गया। लेकिन ये कष्ट हमको नीचे डालने के लिए नहीं था। ये कष्ट इसलिए नहीं आया कि परमेश्वर हमसे नफरत करता है। ये कष्ट आया क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। Hebrews chapter 12:5 says, "My son, do not despise the correction of the Lord, and do not get angry when you are chastised by Him, when you are corrected by Him." हे मेरे पुत्र, परमेश्वर की छड़ी को नफरत ना करना। वो आपको जब करेक्शन करता है वो आप दुखी ना होना, क्योंकि उस समय at that time it is seeming very very painful. Listen very carefully. आपको उस समय बहुत दुख लगेगा, ये मेरी जिंदगी में परमेश्वर क्यों अलाउ कर रहा है। आपको दुख लगेगा, आपके अंदर बहुत ही कष्ट होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है उस समय आपको दुख लगता है, लेकिन
correction of the Lord, when you are chastised by Him, don't hate it, don't despise it. पॉइस कोणी नका जेन्ना देव तुका करेक्शन दिता तुझ्या लाईफाचे वयर तुका खुश जाता तुका दुख जाता पूण ते पॉइस कोणी नका. In the book of Job we read about this servant of God called Job. There's a Job here. Praise the Lord, brother. There's a servant of God called Job, right? In the book of Job. उसके लाइफ में क्या आ गया? अरे वो तो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए. बहुत ही श्रीमान आदमी था, उसके पास सब कुछ था. आज के जमाने की लैंग्वेज में बोलेंगे गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था, बहुत ही गाड़ियां था. He had camels, you know. So those days camels means nowadays Mercedes Benz. Very rich person. ऊंट था, ऊंट उसके पास, बहुत सारे ऊंट. So आज की लैंग्वेज में ऊंट इसका मतलब है आज की लैंग्वेज में मर्सिडीज बेंज का इस सब. तो बहुत सारे मर्सिडीज बेंज. अरे बाप रे कैसे मेंटेन करता था ये, राइट? बहुत ही अमीर आदमी था. उसके पास खेत था, जानवर थे, फैमिली परिवार सब कुछ था. और उसके बारे में ऐसा लिखा गया है कि वो परमेश्वर का भय रखता था. He was a man who hated evil and he had a fear of God. He loved God. वो दुष्टों को नफरत करता था और परमेश्वर का भय मानता था. और जब भी आप परमेश्वर का भय मानते थे, see now I'm coming to the real thing about your life now. आप जब भी आप परमेश्वर का भय मानते हैं, जब भी आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, तब एक याद रखना कि शैतान आपके पीछे लगेगा. किसी को ये वर्ड जरूरी है. Somebody is in need of this word. Hallelujah. Say hallelujah. शैतान परमेश्वर के पास गया. परमेश्वर ने उसको पूछा कहां से आया? धरती से आया. इधर उधर भटकता था. किधर इधर उधर भटकता? हमको पता चला अभी वो कहां भटकता है. 1 Peter chapter 5 verse 8 क्या कहता है हमको? 1 Peter chapter 5 verse 8 ये कहता है कि शैतान एक शेर के समान आपको सराउंड करके देख रहा है, कब आपको खा सकता है. आपके वीक पॉइंट को देख रहा है. तो हमको पता चला है शैतान क्या कर रहा है, इधर उधर कहां जा रहा है, इधर उधर आपके पीछे आ रहा है. परमेश्वर ने रिकमेंडेशन दिया. रिकमेंडेशन पता है इसका मतलब है कि परमेश्वर ने खुद ही बोला. आप जॉब को जानते हैं क्या? देव सांगता का, राइट? प्लीज गॉड. वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है. हाँ, शैतान क्या कर रहा था? वो ढूंढ रहा था किसको खाऊं अभी, किसको मेरे कब्जे में लेके आओ, क्यों किसको दुष्टता में लेके आओ, किसको मेरे राज्य में लेके आओ. ऐसा वो पूरे दिन वो रेस्ट नहीं लेता. हम सोते हैं घुर घुर करके, लेकिन वो सोता नहीं है. वो रेस्ट नहीं लेता है, वो ढूंढता है आपको. So आपको चतुर रहना है. The word of the Lord is saying you got to be on guard. Hallelujah. हमको चतुर रहना है. अरे जितने बार मैंने ये वचन दिया है उतने बार मेरे को इतना तकलीफ आ गई है. आपको पता है जब हम प्रचार करते हैं, प्रचारक को भी टेस्टिंग होता है. आपको पता है परीक्षा होती है हमारी भी, क्योंकि प्रभु का वचन 2 धारी तलवार है. इस साइड में तलवार, इस साइड में धार है, उस साइड में भी धार है. आपको भी काटते हैं, मुझको भी काटते हैं. आपको प्रचार करने के बाद, रिट्रीट होने के बाद जब मैं जाती हूँ मेरे ऊपर भी परीक्षा आती है. परमेश्वर बोलता है आपने उसको बोला ना अभी आप भी सहलो, ये थोड़ा कड़वा बाजी खा लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो हर एक को सावधान रहना है. सावधान बोलो, सावधान. साइड वाले को बोलो
परमेश्वर कलीसिया में हम सावधान करते हैं, घर में जाकर विश्राम करते हैं। और हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि कलीसिया में गए ना, I am a Christian, I went to church, so I am a Christian. Christian होने का मतलब, being a Christian does not mean that you only go to church on a Sunday. You will be tested on a Monday, on a Tuesday, and a Wednesday, and a Thursday, and a Friday, and all day Sunday. You will be tested. Hallelujah, hallelujah. आपके डाइट में कड़वा बाजी आना ही है, नहीं तो आपको स्पिरिचुअल डायबिटीज होती है। सब कुछ अच्छा अगर हो जाएगा, अचानक कुछ होता है, आप रह नहीं पाओगे, आपका इम्यून सिस्टम इतना डाउन हो जाएगा। इसलिए लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम में कड़वा बाजी नहीं है। थोड़ा अच्छा लगता है इधर उधर कुछ कभी कभी, you know, every time if you only see anointing this that, you know, sometimes you got to hear this word. मेरा ब्रदर बाजी वो होलसेलर है, तो वो जानता है करेला कितना अच्छा है ना ब्रदर, बहुत अच्छा है डाइट के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा फिजिकल में वैसा स्पिरिचुअल में परमेश्वर ने हमको यहाँ पर लिखा है, वो अच्छा है हमारे लिए। तो अभी आते हैं जॉब के बारे में। तो शैतान जाता है परमेश्वर के पास और परमेश्वर उसको रिकमेंडेशन देते हैं, हमारा जॉब है ना। तो शैतान क्या कहता है पता है? उसके आजू बाजू में आपने उसको घेर रखा है, मैं उसको छू नहीं सकता। I want to tell you something very beautiful here. उसके आजू बाजू में आपने उसको घेर रखा है, मैं उसको छू नहीं सकता हूं। उस हेज को निकालो, उस बाउंड्री को निकालो, तब मैं उसको छू सकूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस समय परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना लहू नहीं बहाया था। Jesus had not shed his blood at that time. God and you know the devil were talking about Job down there, and the devil is telling God, you have put a hedge around Job. Remove that hedge, remove the protection, remove the boundary. If that time the blood of Jesus was not shed, उस समय यीशु मसीह का लहू बहाया नहीं था, तो कौन सी बाउंड्री थी? अभी इस समय हमारे लिए यीशु मसीह का लहू एक बाउंड्री बन जाता है। हालेलुया। उस समय जानवर का बलिदान करते थे लोग। अगर जानवर का बलिदान करके इतना कुछ होता था, तो क्यों नहीं अब निष्कलंक पवित्र मेमना यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया हमारे लिए, और उसका लहू हमारे लिए एक प्रोटेक्शन बाउंड्री बन जाता है। हालेलुया। और याद रखना, परमेश्वर के परमिशन के बगैर शैतान आपको छू नहीं सकता है। Let me repeat that again. Without the permission of God, the devil cannot touch you. If God permits COVID, only then you will get COVID. So until that time, don't listen to fake news. It's not coming to you. वो आपके पास नहीं आएगा। कोई भी महामारी, कोई भी पीड़ा आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने परमिशन नहीं दिया है। आपके आजू बाजू में परमेश्वर यीशु मसीह का बाउंड्री है, लहू का बाउंड्री है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने इस बाउंड्री को निकाल दिया, परमिशन शैतान को मिला। शैतान जाकर उसके खेती को, उसके जानवर को, उसके सब कुछ नाश हुआ। आपको पता है जॉब के बारे में, राइट? स्टोरी पता है ना आपको? उसका सब कुछ खो गया, और सब कुछ खो गया, उसके बच्चे भी मर गए, और जॉब को क्या हो गया? उसके पूरे शरीर को
बॉइल्स आ गया, ब्लिस्टर्स, ही गॉट बॉइल्स ऑल ओवर हिज बॉडी, पस हो गया, इन्फेक्टेड हो गया वो पूरा उसका शरीर, हिज होल बॉडी वाज इन्फेक्टेड विद बॉइल्स व्हिच वाज पस्ड अप। और वो क्या किया, वो गोबर में जाकर बैठा, he sat down in that ash and he took a piece of clay and he was wiping he was removing the pus from his body with the piece of clay। एक छोटा सा टुकड़ा लेकर ऐसा वो अपने गांव को, वो पस को वो निकाल रहा था। उसकी बीवी आ गई उसके पास और उसको कहने लगी, लिसन वेरी केयरफुली, उसको कहने लगी, क्या परमेश्वर परमेश्वर करके बैठा है, किने देव देव घेऊन बसला, तुझ्या देवान पळय तुका किती केला ते, सोड ते सगळे सोड ते। तुझ्याशी नेला केन्ना अशें तुका कोणी तरी म्हटलं अशें, अरे छोड़ दे यार, क्या प्रभु प्रभु करके बैठा है, यीशु यीशु करके बैठा है, छोड़ दे यार, क्या बाइबल बाइबल पढ़ता है, म्हटला तुका ओय हा कोडूपाची, प्रेज द लॉर्ड। सोडते सगळे, अजूनही तू देव घेऊन बसला, पळय कितले आसले सगळे गेले तुझे, अजूनही तू देव घेऊन बसला। आणि जबान ताका जबाब दिलो आपले बायलेक, ए मूर्ख,